Hello students, welcome to Exam Rat. We here provide you with content for classes 9th and 10th. So if you are new to our platform, please visit our website, watch all our videos and do subscribe. I am Disha. I'll be teaching you biology. So let's start. So before we begin with today's topic, previous lecture we studied about cell. So today we are going to cover part 2 of the chapter, the remaining half. Cell में हमने पढ़ा था cell की discovery, cell की importance, cell structure and different types of organisms. And now we are going to cover cell organelles, right? So let's start. Okay. So fundamental unit of life part 2, that is cell organelles, right? So each cell has a membrane to keep its contents separate from the external environment. This we have studied last lecture, right? A lot of chemical activities are required by multicellular organisms to perform different functions. So according to this statement, जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल्स होते हैं दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज बिकॉज सेल बॉडी इज कॉम्प्लेक्स राइट कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है बॉडी की एज कंपेयर टू अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म तो यहाँ पे केमिकल एक्टिविटीज ज़्यादा होंगी सो टू कीप दीज एक्टिविटीज सेपरेट फ्रॉम वन अनदर सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स जो कि हैं हमारी सेल ऑर्गेनेलीज ओके सो इफ यू फॉरगेट for one moment, if you forget this diagram here, I'm going to draw a simple structure of a cell. Okay, so this is the nucleus. We have the cytoplasm. Right? So now you can see यहाँ पे cytoplasm में cytoplasm क्या था? It was a colorless fluid liquid like thing in which the cell organelles are embedded. Okay? तो यहाँ पे एक सेल ऑर्गेनेली हो सकती है यहाँ पे दूसरी हो सकती है यहाँ पे थर्ड फोर्थ फिफ्थ ओके सो देयर गोइंग टू बी number of cell organelles. So now if you compare this diagram this blue one with this one that I have drawn तो ये थोड़ा सिमिलर लग रहा है राइट ओनली थिंग कि अभी हमें इनके नाम नहीं पता है तो आज का टॉपिक इज अबाउट दैट ओनली हम ये सारे नाम के बारे में स्टडी करने वाले हैं राइट सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड So the first cell organelle that we are going to study about is endoplasmic reticulum. Okay, short में हम इसको ER बोलते हैं, but it's better if we keep practicing the name endoplasmic reticulum. That will help us in memorizing the name also, right? Now, this is a large network of membrane-bound tubes and sheaths. अब यहाँ पे डायग्राम में देखो न्यूक्लियस है ये राइट न्यूक्लियस के बाहर सबसे बाहर the first cell organelle that I am finding here is endoplasmic reticulum. This, right? ये है ये. Now if you look at it, suppose कुछ कंटेंट यहाँ से ट्रैवल कर रहा है कुछ मॉलिक्यूल यहाँ से ट्रैवल कर रहा है इधर से so it can go from here it can go to the right direction also it can go to the left direction also right सिमिलरली वो यहाँ से निकल सकता है राइट सो ये कैसा लग रहा है लाइक अ मेज राइट मेज जैसा लग रहा है ना जो एक हमारे मेज जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है राइट सो दिस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर ओके अब लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और oblong bags it has which is called as vesicle so vesicle term is used for a round structure also right so now we come to types of endoplasmic reticulum so here we have two types ठीक है एक आपका RER हो जाएगा और एक आपका SER
Now R is for rough endoplasmic reticulum. Okay, and SER is for smooth endoplasmic reticulum. Okay, now एक रेटिकुलम को हम स्मूथ बोल रहे हैं, एक को हम रफ बोल रहे हैं. So there has to be the presence of some particular thing which denotes कि ये rough है, ये smooth है. Okay, that something is this ribosomes. Okay, so rough को rough इसलिए बोलते हैं because of the presence of ribosomes attached to the surface, and smooth को because उसमें कोई ribosomes नहीं है यहाँ पे, so that is smooth. Okay, now smooth endoplasmic reticulum helps in the manufacturing of fat, molecules, lipids. This is going to be the number 1 point for its function. Okay, some of these proteins and lipids help build up the cell membrane. Okay, so this process is called as membrane biogenesis. This can come as a short note type of a question or a 1 mark liner also. So ये जो मैन्युफैक्चर करता है प्रोटीन्स लिपिड्स है ना, यही प्रोटीन्स लिपिड्स बाद में जाके कभी सेल मेम्ब्रेन बनाने में, बिल्डअप करने में हेल्प करता है. सो दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. थर्ड, it detoxifies poison and drugs in vertebrates. So these are some of the points about SER, right? Now, functions of ER. Because it is a network, it helps in the transport of materials, especially proteins, between cytoplasm and nucleus. Now, if you see this structure here, it looks like a maze-like structure. तो ये कैसा है? एक network जैसा है. This is the only slide where I have probably used 2 pictures because the second picture is also very very clear. You see here कैसे network बनने की वजह से इसके बीच में tube-like structure की वजह से, I mean it looks like a fold, right? तो उसको कैसे fold कर दिया, ये ऐसे भी जा रहा है, ये ऐसे भी जा रहा है, then it's going like this, like this, like this, right? So it is a tubular structure. So this function of ER statement is telling us कि just because it is like a network, यहाँ पे transport of materials is the function for it, right? Suppose this is my material which has to transport. So यहाँ से होते होते it can go to the desired place it wants to, right? Okay. Next statement is it also functions as a cytoplasmic framework providing a surface for some biochemical activities of cells. अभी हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में पढ़ा था कि सेल में बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं. सो इट प्रोवाइड्स अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क एंड that helps for the biochemical activities of cells. Okay, now here you can see in this particular picture smooth ER, rough ER, right? Here also if you see, smooth will be something which will not have the presence of ribosomes. Let's say if these red dots are ribosomes, तो जिनमें ये डॉट नहीं होंगे वो हमारे स्मूथ रेटिकुलम होगा और जिनमें डॉट्स होंगे वो रफ हो जाएगा, राइट? सो नेक्स्ट, ओके, सो दिस सेल ऑर्गेनेली इज गोल्जी अपरेटस. अब ये गोल्जी नाम एक इंसान के नाम पे है. So the person who described it was Camillo Golgi, and उनके नाम पे हम इसको Golgi apparatus, we study it as Golgi apparatus, and the name is given because he discovered it, right? So it has a system of membrane bound vesicles. Again the word vesicles, जहाँ पे भी word vesicle आने वाला है, आप उस structure को you can imagine it like a round structure. Okay, so vesicles are arranged in stacks parallel to each other called cisterns. Okay, look at this diagram. ये कैसे जा रहा है? ऐसे, like this. और ये stack कैसे हैं? एक के ऊपर एक है, right? ऐसे बना हुआ है, one on top of the other. तो यहाँ पे ये stacks parallel to each other arrange होते हैं. तो ये जो parallel एक के ऊपर एक होता है ना, जैसे ये
इफ आई से दिस इज अ बंडल ऑफ बुक्स, राइट, स्टैक ऑफ बुक्स कह लो, चलो ये एक बुक है, ये दूसरी बुक है, ये फोर्थ है, राइट। सो नाउ ये मेरी बुक नंबर 1 है, बुक 2 है, बुक 3 एंड बुक 4, राइट। नाउ एक के ऊपर एक है, सो ये जो एक साथ है इनको मैं क्या बोलूंगी, सिस्टर्न्स, राइट। इस बंडल को, इस पूरे को मैं क्या बोलने वाली हूँ, सिस्टर्न्स। सो यहाँ पे ये देखो डायग्राम में सिस्टर्न्स है, राइट। देन वी हैव अ वेसिकल। अगेन यहाँ पे जैसे ही एक फोल्ड, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एक राउंड स्ट्रक्चर बना रहा है, सो इसको उन्होंने क्या बताया, न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल, राइट। सो इट विल बी दिस स्ट्रक्चर। एंड नाउ जब वो उससे गोल्जी ऑपरेटर से सेपरेट हो गया हमारा स्ट्रक्चर, तो वो ये डायग्राम है जिसको उन्होंने सिक्रीटरी वेसिकल का यहाँ पे नेम दिया, राइट। सो these membranes have connection with membranes of ER. Material synthesized near ER is packaged and dispatched to inside and outside the cell through Golgi operators. So simple meaning यहाँ पे ये है कि Golgi operators को packing करना बहुत पसंद है, right? It will help in packing the material and dispatching it inside and outside the cell. Okay. Now I have just written this कि ये vesicle क्या है. The Golgi apparatus has proteins and lipids. Okay. Yeah. So one can ask you कि ये भाई vesicle आया कहाँ से इस cell organelle में, right? So हम बताएंगे कि Golgi apparatus has proteins and lipids. It modifies some of them and packs them into sealed droplets called vesicles. Now sealed droplets, you can relate this with the diagram here. ये एक ड्रॉपलेट जैसा बन रहा है, राइट। सो द ड्रॉपलेट इज फॉर्मिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड जिसको उसने यूज किया है वेसिकल बनाने के लिए। ओके, नाउ फंक्शंस, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। किसमें, अब हम पैकिंग करते हैं, ऐसे ही हाथ में सामान लेकर तो नहीं चले जाते हैं, वी पैक आस मटेरियल इनटू सूट केसेस, राइट। तो यहाँ पे वेसिकल वो सूट केस है, किस में पैक कर रहा है, वेसिकल में पैक कर रहा है। ओके, सो फंक्शन क्या है, पैकेजिंग, डिस्पैचिंग इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, और किस में पैक करता है, वेसिकल्स में पैक करता है। नाउ सेकेंड थिंग, मेकिंग कॉम्प्लेक्स शुगर्स फ्रॉम सिंपल शुगर्स। ओके, थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। नाउ लाइसोसोम्स अपने आप में एक सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। सो वी नीड टू रिमेंबर कि लाइसोसोम्स कौन बना रहा है, गोल्जी ऑपरेटर्स बना रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स। अभी लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा कि गोल्जी ऑपरेटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लाइसोसोम्स, राइट। सो वी कैन राइट made by Golgi apparatus, right? You can take down notes side by side, and whatever diagrams we are drawing here, you can draw them on your notebooks for your reference. क्या होता है कि जो हम बुकिश लैंग्वेज का जो डायग्राम होता है, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी ड्रॉ व्हेन वी आर लर्निंग समथिंग। तो अगर वो लर्निंग वाला डायग्राम हम अपने साथ रखते हैं इन द एग्जाम टाइम, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू एंड यू विल बेनिफिट अ लॉट। ओके, so these are a kind of waste disposal system of the cell. Membrane bound sacs filled with digestive enzymes. Okay, so it is a sac like structure. Again we can say कि ये sac like structure है हमारा, इसमें कुछ digestive enzymes होंगी, ठीक है। ये यहाँ पे structure दिख रहा है, digestive enzymes हैं, right? It helps in keeping the cell clean by digesting the worn out cell organelles. Okay, so this is, you can say this is a kind of the function of a lysosome कि क्या करता है भाई, सेल को क्लीन रखता है। कैसे क्लीन रखता है, डाइजेस्ट कर जाता है worn out cell organelles. So ये तो अच्छी बात है ना, बिकॉज worn out है, मे बी दे कांट बी यूज्ड अहेड, राइट। तो उनको
डाइजेस्ट कर जाता है. सेकेंड, it digests the foreign material, bacteria, food and old organelles, just what we studied here, worn out है ना, उनको ब्रेक कर देता है इनटू स्मॉल पीसेस. नाउ डाइजेशन का मतलब ही होता है ब्रेक करना स्मॉल पीसेस में. डाइजेशन इटसेल्फ स्टार्ट्स इन आवर माउथ व्हेन वी टेक अ पीस ऑफ फूड, राइट, कुछ भी ले लो, जब हम उसको च्यू करना स्टार्ट करते हैं वी आर ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर पीसेस. फिर वो स्मॉलर पीसेस आर इजीली डाइजेस्टेड बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेशन का होल पर्पस, मीनिंग कुछ भी कह लो, इज जस्ट कि वी हैव टू ब्रेक डाउन ऑफ द सब्सटेंस इनटू simpler forms which is easily digestible by the body. So ये क्या कर रहा है, डाइजेस्ट करता है फॉरेन मटेरियल, बैक्टीरिया, फूड एक्सेट्रा इनटू स्मॉल पीसेस, राइट. नाउ इट कैन डू सो. ओके, सो बेसिकली दिस इज टेलिंग अस कि ऐसा क्या है लाइसोसोम्स के पास जो बाकी कोई नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा है, बिकॉज इट हैज द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स which help in breaking down organic material. Clear? Now, during disturbance in cellular metabolism. Okay, so metabolism cell का कभी disturb हो सकता है, किसी भी रीजन से हो सकता है, right? When the cell gets damaged or there's some other problem. So lysosomes burst. कैसे burst कर देते हैं? इनके जो digestive enzymes हैं ये, right? These digest the own cell. ठीक है. सो बेसिकली लाइसोसोम ने खुद ही अपने आप को मार लिया. अब इसके लिए एक टर्म हमें पता ही है, उसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बोलते हैं, राइट. सो दीज आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स. व्हाई? बिकॉज लाइसोसोम को क्या लगा, इसको स्टोरी की तरह समझते. डिस्टर्बेंस आई कोई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई, लाइसोसोम को लगा मैं तो नहीं झेल पाऊंगा, सो उसने खुद ही अपने आप को डाइजेस्ट कर डाला. कैसे डाइजेस्ट कर डाला? बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो वो सुसाइड हो गया. तो सुसाइडल बैग्स, राइट. तो अगर ऐसे याद रखोगे कभी नहीं भूलेगा. ओके, नेक्स्ट वी कम टू माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल. अब पावर हाउस है हमारे घर में, वी हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट. इलेक्ट्रिसिटी घर पे किसी मशीन से तो नहीं बन रही है. वी हैव कनेक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी. फर्दर दैट कनेक्शन इज इट कम्स फ्रॉम डिफरेंट पोल्स किसी पावर ग्रिड किसी स्टेशन से जुड़े हुए हैं, राइट. सो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? किसी चीज से आ रही है. सिमिलरली सेल कि जो पावर है वो सारी जो एक एनर्जी बन रही है वो किस चीज की वजह से बन रही है? इस चीज की वजह से बन रही है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट. Energy required by various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of, okay, in the form of क्या? ATP molecules. ATP का full form adenosine triphosphate. Okay. ओके, थोड़ा सा ये लाइन को पढ़ेंगे अब. एटीपी क्या है? एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है. एनर्जी करेंसी का मतलब क्या होगा? लाइक वी यूज मनी फॉर ट्रांजैक्शंस, राइट. जो हम कॉइन्स यूज करते हैं, हम नोट्स यूज करते हैं, तो वो भी एक करेंसी है. हाउ डू वी से कि दैट इज मनी? दैट इज द करेंसी, राइट. सो सेम वे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल एटीपी है कि एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में बनेगा या यूज होगा, व्हाटएवर. ओके, सो इट यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क. Very simple, right? Now, mitochondria have two membranes. So let's draw a rough structure here. Okay, I'll draw it here. Two membranes. So जैसे जैसे हम ये lines पढ़ रहे हैं हम साथ साथ diagram build up करते जाएंगे. This way you will not forget the diagram also. So has two membranes. Outer porous, एक मैंने बना दिया ये membrane, right?
इनर डीपली फोल्डेड. अब एक डीपली फोल्डेड ऐसा कुछ बनेगा. ओके. सो ये जो फोल्ड्स हैं, दीज फॉर्म, व्हाट डू दे फॉर्म? क्रिस्टे. अब हमने एक टर्म पढ़ी थी, सिस्टर्न्स. सिस्टर्न्स किस में था? गोल्जी एपरेटस में था. सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड, राइट? ये क्या है? क्रिस्टे. This structure, the fold is forming what? Cristae. फोल्ड ही क्यों बनाया? ऐसे भी तो बन सकते थे, ऐसे डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, राइट? सो फोल्ड का एक पर्पस है, आई एम पुटिंग अ स्टार हियर. फोल्ड्स क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन. एटीपी क्यों चाहिए? केमिकल रिएक्शंस के लिए चाहिए. ओके. सो फोल्ड्स क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस. Next line. It has its own DNA and ribosomes. Okay. So hence it makes its own proteins. So this is a very important line because not all cell organelles have their own DNA. Not all cell organelles have own ribosomes. ठीक है? तो ये एक this is a point that you need to keep remembering. Coming to the diagram here, I think we very well covered it. ये आपका outer membrane, inner membrane, right? Inner membrane थोड़ा सा अंदर फोल्ड हो गया है टू फॉर्म क्रिस्टे. बीच में ये जो कोई भी एक कंटेंट होगा, फ्लूइड कंटेंट, ये होगा मैट्रिक्स. ओके. एंड क्योंकि जस्ट नाउ वी रेड इट हैज इट्स ओन डीएनए, तो यहाँ पे डायग्राम में डीएनए मॉलिक्यूल्स हम शो कर सकते हैं. ओके. And it has its own ribosome. So again, I can show some ribosomal structure also. So let's say this blue one is the ribosomes. Okay. So ये हमारा mitochondria complete हो गया. Now we're left with function. Function is pretty much the same that we read here. It is to form ATP, to oxidize the food to obtain energy, also carries out cellular metabolism. Right? Okay. Now these are plastids. सबसे पहली लाइन जो which is going to be the rule for plastids, present only in plant cells, right? सेल्स कौन से टाइप्स के थे हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है? एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, यूक्रियोट्स, प्रोक्रियोट्स, राइट? सो अभी हम बात करें प्लास्टिड्स के बारे में. ये सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलने वाले हमें. ओके. It is a double membrane organelle just like mitochondria. अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, right? Okay. So it is a double membrane structure like mitochondria. It also has its own DNA and ribosomes. तो मतलब अभी मैंने दो सेल ऑर्गेनेली पढ़ ली जिनके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स हैं. वो कौन सी हैं? प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया. ओके. Its internal organization has numerous membrane layers embedded in a material called stroma. Now, इन्हीं लाइंस को यूज करके एक रफ डायग्राम बना लेते हैं. डबल मेम्ब्रेन. सो ये डबल हो गया. ओके. इट हैज स्ट्रोमा. तो यानी कि ये जो फ्लूइड कंटेंट यहाँ पे होने वाला है, दैट विल बी स्ट्रोमा. माइटोकॉन्ड्रिया का फ्लूइड कंटेंट क्या था? मैट्रिक्स. सो देयर आर डिफरेंट टर्म्स, यू हैव टू लर्न दोज टर्म्स, राइट? सो ये एक डबल मेम्ब्रेन हो गया. डबल है मतलब बाहर वाले को क्या बोलेंगे? आउटर मेम्ब्रेन. अंदर वाले को क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन, राइट? अब बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम थाइलाकॉइड्स बोलते हैं, राइट? तो वो ऐसे पैक्ड होते हैं. ये एक स्टैक हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड एंड फोर्थ. सो आपस में ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू दिस lamella. So this is a rough structure for plastids, right? Now there are two types of plastids. Okay.
one chromoplast and the other leucoplast. Chromoplasts colored plastids होते हैं, okay? ल्यूकोप्लास्ट्स व्हाइट या कलरलेस होते हैं. ल्यूको से याद रख सकते हैं, व्हाइट कलरलेस, ल्यूकोसाइट्स भी होते हैं, राइट? सो व्हाइट कलरलेस एंड ये कलर्ड क्रोमोप्लास्ट. Plastids which contain pigment chlorophyll are called as chloroplasts. Okay, so I think it's very much clear कि chlorophyll नाम है. Chlorophyll is a green pigment, right? So उसको chlorophyll से chloroplast नाम दे दिया, right? So these are important for photosynthesis in plants. Again, chlorophyll है उसमें. Chlorophyll हमारे photosynthesis में help करता है. तो obviously this structure is also going to contribute to photosynthesis, right? They also contain orange yellow pigments in addition to chlorophyll. Now it stores, okay, so this is the function for leucoplast. It stores starch, oils and protein granules. So basically this is for the colored plastids, that is the chromoplast. This is for the leucoplastids. Clear? Now we go to the next slide. Okay, vacuoles. These are storage sacs. तो हमारे घर में कुछ ना कुछ एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम कुछ डंप कर देते हैं, राइट? सो ये वो एक ऐसा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें हम कुछ डाल रहे हैं. सो दिस इज सॉलिड और लिक्विड कंटेंट के लिए ये सैक होता है. अब वैक्यूल्स के टाइप है एनिमल सेल वैक्यूल, प्लांट सेल वैक्यूल. प्लांट सेल वैक्यूल्स आर लार्ज. क्यों लार्ज? बिकॉज दे ऑक्यूपाई almost 60 to 70% of the cell volume. Animal cell have small sized vacuoles. Okay, now coming to plant cell vacuole, they are full of cell sap. Then they provide rigidity and turgidity to the cell. Central vacuole of some plant cells may occupy 60 to 70% of cell volume. Then fourth point we have many substances of importance to the plant cell are stored in vacuoles like amino acids, sugars, proteins, etc. तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होने वाला है ये, स्टोरेज सैक लाइक, राइट? तो जब हम कुछ स्टोर करते हैं तो हम अपनी इंपॉर्टेंट चीजें ही बैग में रखते हैं ना, राइट? तो वो इंपॉर्टेंट चीजें, प्लांट के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं. प्लांट के लिए अमाइनो एसिड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन्स, राइट? सो कहाँ पे स्टोर हो रहा है ये सब? वैक्यूल्स में स्टोर हो रहा है. नाउ वैक्यूल्स इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, दे कंटेन द फूड आइटम कंज्यूम्ड. सो बेसिकली अमीबा ने जो खाया उसने अपने वैक्यूल में रख दिया, सेफ रख लिया, राइट? So this is the structure of a amoeba. We don't have to study all this. It's just for your reference because I have used the example of amoeba here. Now, कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं. ओके, सो दे हैव स्पेसिफिक रोल्स लाइक एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम सेल. Now this point is an additional point which I think is not given in the book. A membrane that surrounds the vacuole is called tonoplast. For now, this much will be enough for you. Okay. अब हमने कुछ सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ी, तो उसके बाद उसके बेसिस पे we can differentiate between plant cell and animal cell. If you don't look at the diagram here, कुछ differences are going to be very evident. सबसे पहले एनिमल सेल थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकता है, ओवल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, राइट? और प्लांट सेल कैसा दिख रहा है यहाँ पे? रेक्टेंगुलर दिख रहा है. नाउ ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है कि उसने सेल का आई थिंक मोर देन 60-70% ले लिया है, जो हमने परसेंटेज पढ़ा अभी. सो ये क्या है? प्लांट सेल हैव लार्ज वैक्यूल, एनिमल सेल हैव small vacuoles. Okay, now another thing, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये दोनों में होता है, राइट? लेकिन एक ऐसी चीज होती है जो दोनों में नहीं है, that we have studied in the previous lecture, ये है सेल वॉल. सो हैज
cell wall, no cell wall. एनिमल सेल में एक और स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोसोम, ठीक है, विच वी हैव नॉट स्टडीड अभी तक, एंड प्लांट सेल्स डोंट हैव इट. You can see it in the diagram, right? So this is just a tabular representation of what I taught you. Plant cells are larger as compared to animal cells. Animal cells are smaller. Cell wall present होती है, animal cells में absent होती है. Plastids present होते हैं plant cell में, animal cell में plastids absent होते हैं. Because जब हमने अभी plastid पढ़ा, उसका फर्स्ट मोस्ट पॉइंट था उस स्लाइड का कि इट इज प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन प्लांट सेल्स. नाउ सेंट्रोसोम प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं, सेंट्रोसोम्स एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. So I have just written a one line definition because this is of not I mean importance to you according to the book. बुक में नहीं है ये. सेंट्रोसोम इज अ स्ट्रक्चर विच इज इन्वॉल्व इन सेल डिविजन. आप बस इतना अपने इस डेफिनेशन को दिमाग में रख सकते हो. नेक्स्ट, vacuoles are large in plant cells, vacuoles are small in or absent in animal cells. Okay. Okay. So with this we have completed the cell organelle part, but before that we just have a summary कि cell को functional unit क्यों बोलते हैं. हमने क्या पढ़ा, आई एम जस्ट गोइंग टू डू अ क्विक जिस्ट ऑफ द प्रीवियस स्लाइड्स. ये सेल है, सेल में मेम्ब्रेन्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, राइट? So the cell acquires its structure and ability to function only and only because of the organization of its membrane and organelles. By this line what I mean is कि यहाँ पे अगर एक ऑर्गेनेली है, यहाँ पे एक ऑर्गेनेली है, अगर इनके पास मेम्ब्रेन्स नहीं होंगे, so maybe there would be interference or they might not function properly. तो इसलिए सेल ऑर्गेनेलीज हैं डिफरेंट, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज के डिफरेंट फंक्शंस हैं, एंड उन सब सेल ऑर्गेनेलीज के मेम्ब्रेन्स हैं टू कीप देम सेपरेट, ओके, सेपरेट फ्रॉम वन अनदर. Now, because the cell has such a structural organization, it can perform functions like respiration, obtaining nutrition, clearing of waste material, forming new proteins, etc. So जब इतना कुछ cell कर रहा है तो obviously cell will be the functional unit, right? So we can write here that it can perform functions like respiration, nutrition, clearing waste material, new proteins. Okay. So therefore, it is the fundamental structural unit of living organisms, and it is also the basic functional unit of life. Hence the name of the chapter, fundamental unit of life, cell. Okay. Now this is a new edition, I believe. थोड़ा सा सेल डिवीजन के बारे में आपको पढ़ना है. सेल डिवीजन क्या होता है? It is the process by which new cells are made and it is called cell division. ठीक है? So there are two main types of cell division, mitosis and meiosis. We're going to study a little bit about them. So this is mitosis, this is meiosis. Okay. सबसे पहले माइटोसिस किसके लिए है? ग्रोथ के लिए. और किसके लिए है? रिपेयर के लिए. ठीक है? रिपेयर ऑफ व्हाट? टिश्यूज. ओके. अब माइटोसिस में होता क्या है? लेट्स से दिस इज अ मदर सेल. ओके.
दिस इज अ मदर सेल. ये डिवीजन होगा here. It will divide. ओके, आई एम जस्ट ड्राइंग इट लाइक दिस. और ये छोटा सा डिवाइड का साइन इसलिए बनाया बिकॉज दिस लेस ऑफ स्पेस. ओके, सो ये डिवाइड करेगा टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. ओके, keep taking a note of the rough diagrams because sometimes they help in memorizing what you have learned. Okay, now you can see ये तीनों cells एक जैसे लग रहे हैं. So this is the mother cell and these are the daughter cells. Okay, now daughter cells have same number of chromosomes. Okay, so यहाँ पे क्या मीन व्हाट इज द डिफरेंस हियर. यहाँ पे जितने क्रोमोसोम्स मदर सेल के पास होंगे उतने क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स के पास होंगे. एज यू कैन सी द डायग्राम हियर, these structures are the chromosomes. So the मदर सेल के पास दो क्रोमोसोम्स हैं एंड डॉटर सेल्स के पास भी दो क्रोमोसोम्स हैं, राइट. This particular picture is not of reference for class 9 because it shows more than what is written here. I have just used it for reference. You don't have to get into the details कि ये क्या कौन सा phase है, ये कौन सा phase है, because mitosis के बहुत सारे phases होंगे, right? We have to just study about the definition and what it is about. That is only required here, okay? सो अगर आपको याद रखना है, यू कैन कीप इन माइंड दिस डायग्राम ऑल्सो कि मदर सेल है, इट डिवाइड्स इनटू टू जो डॉटर सेल्स होंगे. एंड द ओनली थिंग, डॉटर सेल्स विल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो मदर सेल्स के पास है. सो लेट्स सी इफ आई कैन, या सो इफ आई से दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2, 3 एंड 4. मदर सेल के पास 4 है तो डॉटर सेल्स के पास भी 4 होंगे. ये रहे. ओके, बस इतना है आपका माइटोसिस. नाउ वी कम टू मियोसिस. ओके, अब सेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के या टिश्यूज के इन एनिमल्स एंड प्लांट्स दे डिवाइड टू फॉर्म गैमीट्स, राइट. गैमीट्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है एंड फर्टिलाइजेशन से ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे. This much we know. Okay, so this process involves two consecutive divisions. So ये एक पहला डिफरेंस आने वाला है आपका माइटोसिस मियोसिस में. यहाँ पे तो एक ही डिवीजन हो रही थी, यहाँ पे टू कंसेक्यूटिव डिविजन्स होने वाली हैं. ओके, secondly, this is going to be for growth repair of tissues and this is for the reproductive organs or tissues. ठीक है. Third, now, when a cell divides by meiosis, it produces 4 new cells instead of just 2. Okay, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये 4 सेल्स बना रहे हैं. यहाँ पे माइटोसिस में कितने सेल्स बन रहे थे? 2 सेल्स बन रहे थे. जस्ट नाउ वी सॉ, राइट. सो नाउ विल ड्रॉ अ रफ डायग्राम. जैसा इसका बनाया है वैसा ही बनाएंगे. दिस इज अ मदर सेल. सो एक डिवीजन होने वाला है, राइट. उसके बाद दूसरा भी डिवीजन होने वाला है. सो ये दो डिविजन्स होने वाले हैं, तब जाके हमें डॉटर सेल्स मिलने वाले हैं. ओके, सो यहाँ पे मैंने एक जस्ट टू कीप इट इन माइंड, डिवीजन साइन को मैंने 2 टाइम्स बना दिया है सो दैट इतना डिवीजन का याद रहे कि कौन से में 1 डिवीजन रहना है, कौन से में 2 डिविजन होने वाले हैं. सो यहाँ पे 2 डिविजन हो गए. ओके, नाउ ये भाई मदर सेल है. ओके,
ये डॉटर सेल्स हैं. Now, meiosis is also called as reductional division. क्यों reductional division? Because यहाँ पे you see ये कितने chromosomes हैं? If I am saying कि ये एक chromosomal structure है, ठीक है? So these are 4 chromosomes, right? यहाँ भी 4, ठीक है? यहाँ आते आते ये 2 हो गए, लेकिन डॉटर सेल्स कितने बन गए? 4. So, since the number of chromosomes gets reduced to half, meiosis is also called as reductional division. So, कुछ भी मगअप करने की जरूरत नहीं है. If your concepts are clear, क्यों रिडक्शनल? बिकॉज क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो गए. यहाँ पे क्यों नहीं बोल रहे उसको रिडक्शनल? 2 क्रोमोसोम्स मदर के पास है, 2 ही डॉटर के पास है, राइट? यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पे सबके पास 2 हैं, राइट? So I think this is done with cell division. Now we have, yeah, mitosis and meiosis. This is again a simpler way of the diagram which we have just studied. Same चीज है. मदर सेल है ये, but I find this picture a better representation, so I've kept it here. Mother cell है, replication, division, we don't have to get into that for now. We are just understanding कि कौन से प्रोसेस में क्या हो रहा है. So mother cell है, division हो गया, 2 daughter cells हो गई. Chromosomes देख लो, ये 1 2 3 4 1 2 3 4. मदर के सेल में कितने हैं? 1 2 3 4. So same number of chromosomes. यहाँ पे ये भी मदर सेल है, राइट? डिविजन्स होगी, 2 डिविजन्स होंगी. सो एक तो 2 डिविजन्स हो गया, एक डिफरेंस हमारा. दूसरा 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, बट विथ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. फोर्थ है यहाँ पे, है ना? 1 2 3 4. यहाँ पे कितने रह गए? 1 2 1 2 एंड सो ऑन. सो माइटोसिस एंड meiosis. Okay, this is the last slide. It has nothing to do with, I mean, I am not going to teach it. It is just here for reference because I find कि इस slide में जो भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो बहुत ही डिस्टिंक्टली विजिबल है. लाइक एक एक सेल ऑर्गेनेली इज सो ब्यूटिफुली रिप्रेजेंटेड हियर. यू कैन सी. Okay, we'll start with, although this is a representation of a eukaryotic cell, but again, I personally found that the diagrams are so beautifully done that it will help you remember all the cell organelles. So this is the plasma membrane, ठीक है? Then cell organelles हमने क्या क्या पढ़ी हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है, तो ये नेटवर्क लाइक है, राइट? हमने न्यूक्लियस पढ़ा था, ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस का भी सेंटर हमने पढ़ा था, न्यूक्लियोलस है, ये देखो. ओके, इसमें राइबोसोम्स हैं ये छोटे छोटे से, विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? देन ये माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ द सेल. ये गोल्जी बॉडी है, यू नो, स्टैक्स हैं ऐसे बने हुए, राइट? ये लाइसोसोम्स हैं जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है. ओके, so with this we end with today's lecture, and if you have any queries you can comment down and tell us. Thank you for watching.